فاتح سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو، کیونکہ انہوں نے ایک جنگ نہیں لڑی جو بھارت سے لڑی، وہ 2 جنگیں لڑ رہے تھے۔ اپنی اپائنٹمنٹ کے بعد سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف اور کچھ اپنوں کے بیرونی سازشوں میں شکار لوگوں کے خلاف اندرونی جنگ لڑ رہے تھے، اور اپنے اصحاب کو اور اپنی خود اعتمادی کو ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کبھی کسی لمحے پر نہ مجھے ان میں مایوسی نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ کامیابی نصیب کی ہے جس سے آج پاکستان کی یہ قوم دنیا بھر میں فخر سے سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گئی کہ میں نے واپس کر دیا، کیونکہ کچھ باتیں جب اچھے پیارے لوگ بیٹھے ہوں اور میڈیا کے دوست بھی موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ دل کی بات کر لینی چاہیے۔ اور حقیقت آج کی تاریخ میں تھوڑی سی مختلف ہو چکی ہے۔ اگر یہ تقریر میں آج سے چند ماہ پہلے کر رہا ہوتا تو اس ملک میں مایوسی کے بادل کچھ زیادہ چھائے ہوئے تھے۔ قوم ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی تھی۔ ملک کے وہ دفاعی ادارے جو ملکی سرحدوں کے ضامن ہوتے ہیں وہ کوشش میں تھے کہ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معیشت کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالیں، لیکن یہ ملک جسے وزیر اعظم پاکستان بھی اپنے اڑان پاکستان کے ذریعے ملکی معیشت کو اوپر لے جانا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں، جس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے اور ان کی ٹیم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنی ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو مایوسیوں کے بادل تھے، اسے حالیہ واقعات جو کہ ہم سبھی کے علم میں ہیں اور آج کل پاکستان میں اظہار تشکر کی صورت میں منائے جا رہے ہیں، جسے ہم مارکہ حق کا نام دے رہے ہیں، اور وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ حق اور باطل کی اس لڑائی میں جب رات کے اندھیرے میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور اس حملے میں پہلی رات اس ملک میں ایک معصوم 7 سالہ بچہ شہید ہوا اور مختلف علاقوں میں ہماری مسجدوں کو شہید کیا گیا اور معصوم شہریوں کو شہید کیا گیا، تو الحمدللہ اس ملک کی افواج فورسز نے دن کی روشنی میں جو جواب دیا، اس جواب کی وجہ سے آج یہ پوری قوم ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ مجھے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ملک پاکستان اس قوم نے اور اس کے رہنماؤں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا۔ یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو حاصل کیا گیا ہے، اس کو ہمیشہ اللہ کی غیبی طاقتیں سپورٹ کرتی رہیں گی اور انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات بھی نظر آئے ہیں اور نظر آتے رہیں گے۔
आज का ये जो फोरम है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान के तमाम फोर्सेस की लीडरशिप को और खास तौर पे फातेह सपेसालार जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को, क्योंकि उन्होंने एक जंग नहीं लड़ी जो भारत से लड़ी, वो 2 जंगें लड़ रहे थे। अपनी अपॉइंटमेंट के बाद से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ और कुछ अपनों के बैरूनी साजिशों में शिकार लोगों के खिलाफ अंदरूनी जंग लड़ रहे थे और अपने असहाब को और अपनी खुद एतमादी को जाहिर करते हुए उन्होंने कभी किसी लम्हे पर न मुझे उनमें मायूसी नजर आई, और जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 1.5 सालों से जो सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही थी, जिसे मैंने हर बार आप सब बिजनेसमैनों के सामने, उलमाए कराम के सामने रखा कि ये एक बैरूनी साजिश है और वो साजिश सिर्फ इस मुल्क की मईशत और तरक्की को रोकने की साजिश। तो हमारे इस सपेसलार ने दोनों जंगों को खुश उसलूबी और कामयाबी से लड़ा और अल्लाह ताला ने इस कौम को वो कामयाबी नसीब की है जिससे आज पाकिस्तान की ये कौम दुनिया भर में फख्र से सर उठाकर चलने के काबिल हो गई है। आज इस खित्ते में जो भारत चाहता था, यानी कि वो इस खित्ते में जो अदम तवाजुन और अपनी बालादस्ती चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी कौम ने उस अदम तवाजुन और उसकी उस बालादस्ती को आज इस खित्ते में बराबरी की बुनियाद पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसमें हमारी तमाम फोर्सेस का, एयरफोर्स, नेवी, अफवाज पाकिस्तान ने और उन गयूर माओं ने और उन गयूर बीवियों ने, बेगमात ने इस जंग में, माओं ने अपने जवानों को सरहदों पर भेजा और बेगमात ने अपने शोहरों को जामे शहादत के लिए भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन जवानों ने पाकिस्तान को वो इज्जत इस खित्ते में दिलाई है कि अब इस चीज की शुरुआत होती है जिसके लिए आज हम यहां खड़े हैं। वो क्या है? अफवाज पाकिस्तान ने तो ये बता दिया भारत को भी और इस दुनिया को भी कि इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और मजबूत हाथों में है। लेकिन अफसोस के साथ जब हम अपने से कई गुना ज्यादा फौज के साथ लड़ रहे थे, जिसके मुल्क की फौजी बजट $80 बिलियन है और इस मुल्क का $11 बिलियन से भी कम है, तो वहां का मीडिया पाकिस्तान को IMF के कर्ज और उसकी किस्त $1 अरब की रिन्यूअल कराने पर ताने दे रहा था और अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा था। और उस IMF की टीम में जो इंडियन डायरेक्टर बैठा था, वो बार बार ये कोशिश कर रहा था, वहां की मैनेजमेंट को बता रहा था कि इनको ये $1 अरब इस वक्त ना दें, ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल करेंगे, ये मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, स्टेट बैंक की टीम ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूं, ये जो आगे मेरे सारे मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs बैठे हैं, बैंकों के सदूर बैठे हैं और मीडिया के दोस्त भी बैठे हैं, आप दिल पर हाथ रख कर कहें, दिल में एहसास पैदा कर कर कहें, क्या जो मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया गया, जहां मुल्क के नाम से पहले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लगता हो, जिसमें गयूर कौम रहती हो, क्या आज वो ये कशकोल कर्ज का लेकर
IMF की जंजीरों में जकड़ी हुई है। यहां का फाइनेंस मिनिस्टर हो या स्टेट बैंक का गवर्नर हो, उसके पैरों में IMF की जंजीरें हैं। हम आजादाना पॉलिसी नहीं बना सकते। आज हमारे तमाम सनतकार और ताजिर ये अज़्म करें, जिस तरह मुल्क का दिफा मजबूत करके दिखाया है, आए हम भारत को और दुनिया को, इस मुल्क की मईशत को भी मजबूत कर कर दिखाएं इंशाअल्लाह ताला। आए हम मिलकर इस मुल्क के सियासी इस्तेहकाम को भी ऐसा मजबूत कर कर दिखाएं कि अगली बार दुश्मन हमें इस माशी गुलामी का ताना ना दे। जब जंग बुनियादी बराबरी की बुनियाद पर हो रही हो और नारे हक की बुनियाद पर हो रही हो, और जब आपका सिपाही सरहदों पे खड़ा होकर अल्लाह अकबर और नारे तकबीर का नारा लगा रहा हो, तो उसके पैरों में फिर ये IMF की और कर्ज की जंजीरें नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब, इस कर्ज से आजादी चाहिए। आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मैं समझता हूं कि सैलानी ट्रस्ट को, मौलाना बशीर फारूकी साहब को मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज जिन लोगों को इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है, जिनका इंतखाब किया गया है, वो बड़ा ही बेहतरीन है, बड़ा ही आला है। जब उलमाए कराम भी मौजूद हों, रेगुलेटर्स भी हों, बैंकिंग के सदूर भी हों, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, और साथ में पुलिस भी बिठाई हो, तो क्या ही बात है। क्योंकि इस मुल्क में पुलिस का किबला भी ठीक हो तो पूरा मुल्क ठीक हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस सूबे में एक बेहतरीन IG सिंध और एक CCPO मिला हुआ है, जो कि बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए। क्योंकि मैंने वापस भी जाना है, तो आप समझ सकते हैं, अगर गवर्नर हाउस की तकरीर होती तो उसमें और ज़्यादा तारीफें होती, लेकिन मैंने दबे लफ्ज़ों में की। तो मैं ये कह रहा था कि आज के लोगों का इंतखाब इसलिए मुझे अच्छा लगा कि यही वो टीम है जो इस मुल्क के बैंकिंग निज़ाम को इस्लामी बैंकिंग निज़ाम की तरफ अच्छे तरीके से ले जा सकते। लेकिन बहैसियत गवर्नर सिंध या एक पाकिस्तानी मुसलमान होने के नाते मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जिस मुल्क के नाम से पहले इस्लामी जमहूरिया लिखा हो, जो रमजानुल मुबारक में मिला हो, काश वे सूद से पाक मुल्क हो। हम इस सूदी निजाम से हकीकी इस्लामी निजाम की तरफ आए। वो इस्लामी बैंकिंग निजाम ना हो जिसका वेस्ट हमें फिर ताना दे कि इससे बेहतर तो फिर हमारा ही बैंकिंग निजाम था। ये इस्लामी बैंकिंग निजाम कुरान, सुन्नत और शरा के मुताबिक हो, लेकिन उसके लिए मैं जानता हूं कि हमें बड़ी मेहनत करनी है। ये ऐसे ज़बानी नहीं होगा। हम जकड़े हुए हैं उन मसाइल और कर्जों में जिनमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन हम रिवायतों को निभा रहे हैं। लेने वाले कर्जे वाले कुछ और थे, देने वाले कुछ और हैं। लेकिन क्या करें, ये मुल्क पाकिस्तान हम सबका है। हम इससे जान तो नहीं छुड़ा सकते। जिंदगी आपको कितना भी थका दे, लेकिन हमें खड़ा रहना पड़ेगा। जिंदगी हमें कितना भी थका दे, लेकिन हमें खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने हम ही से टेक लगाए हुए हैं। कुछ लोगों ने हम ही से टेक लगाए हुए हैं। और अगर शायर कहता तो वो कुछ यूं कहता कि कैसे कह दूं कि मैं थक गया हूं, कैसे कह दूं कि मैं थक गया हूं, जाने किस किस का हौसला हूं।